can you be a good ranker? I'll answer you. Hello everyone, this side Nagma, founder of Technical Guru Coaching Center, and you are watching TGCC Legal. I'll welcome you all in the second episode of the Success Story series, and this video is very beneficial for all those students who is going for DULLB entrance, PULLB entrance, BHULLB entrance and any other law entrance. इस वीडियो में चेतने खंडेलवाल जो CLC के बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है उनकी वीडियो है एंड वो कैमरा फेस नहीं करते, उन्होंने मेरे फोर्स करने पे आपके लिए वीडियो बनाई है एंड दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज यहाँ आपको आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा. हाउ कैन यू यूटिलाइज योर रिमेनिंग डेज एंड सेकेंड व्हाट थिंग यू कीप इन माइंड बिफोर एंड ड्यूरिंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम. इस वीडियो को लास्ट तक देखना. मुझे बिल्कुल भी हवाबाजी करनी नहीं आती है, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके साथ बात करूंगी एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए बिफोर यू एंटर. Hello everyone, I am Chaitanya Khandelwal. I secured 14th rank in 2019 DULLB entrance exam. In this video, I would be sharing my experience with you and telling you how you can not just crack this exam but with a very good rank. The broad pattern of the exam comprises of 4 sections. First is English comprehension, second is analytical reasoning, third is the legal awareness and aptitude, and the fourth is current affairs. Since the date has been announced by the NTA, you are left with approximately 45 days. Going forward, I will be dividing my video into 2 parts. First part would be dealing with how you can utilize your remaining days to maximize your score and the accuracy of the questions you attempt. Second part would be dealing with that what things you must keep in mind before and during writing the exam. Addressing to the first question on how to increase your marks, first start consolidating your notes or any study material which you have referred till now, so that just before the exam those notes would be very handy to you. Second, for those who haven't prepared your notes, they can refer to any good quality current affairs or legal aptitude magazine of last maximum 5 to 6 months. Do not overburden yourself with more of reading. Currently, focus more on whatever till now you have read, on revising it. Third point is solve at least 6 to 7 mock tests till the end of August. That's the best you can do in the remaining days. My fourth point is continue reading newspapers like The Hindu or Indian Express. That would help you in English comprehension by increasing your vocabulary and your reading speed, and also in your current and legal awareness. Overall, focus more on legal and current awareness as the weightage of these 2 sections have increased over the years. Also, you can check some of the legal and related videos in this channel as well. It might help you for the entrance. Now, coming to the second part of my video. So things which you must keep in mind just before and during the exam. First and the foremost is stay focused and calm. Do not overthink about your failure or your success during the exam or even before it. That would unnecessarily pressurize you. Second, do not panic even if you are unable to solve the initial questions of your set. You will definitely get some easy questions ahead. As the sets are different, so some might get easier questions first and some might get a bit tough ones first. So do not lose hope at the very beginning. Third thing is, this might sound a very trivial one, but it's an important thing. Keep yourself hydrated throughout the exam.
At the end, I would just like to say, DU LLB entrance is not a tough exam as some of you might think. Give your best in this last phase of your preparation and you will definitely sail through it. If this video helped you in clearing your doubts, then do like and share with your friends and also subscribe to the channel. For any further doubt, you can comment down below and Nagma and I would be more than happy to reply on your queries. Stay safe and stay healthy. Hope to see you in Law Faculty. आपको चेतने का जो एक्सपीरियंस होगा बहुत अच्छा लगा होगा। इससे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिली होगी। किस तरीके से चेतने ने अपनी स्ट्रैटेजी को आपके साथ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड आपको इससे ये सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग अपने शेड्यूल में ऐड करनी होगी कॉम्प्रीहेंशन के लिए। कॉम्प्रीहेंशन के लिए इसलिए ऐड करनी होगी क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें 2 से 3 पेजेस होते हैं। अगर हम फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, सेकंड भूल जाते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड भूल जाते हैं, तो ये तभी हैबिट हो पाएगी जब आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की होगी। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन रीड करना होगा। एंड चेतने ने एक बात और बोली आपको कि ये जो एग्ज़ाम है टफ़ नहीं है। नो डाउट ये एग्ज़ाम सच में टफ़ नहीं है। ये एग्ज़ाम टफ़ कहाँ बनता है जब आपकी सीट अलॉटमेंट की बात आती है, क्योंकि 17,000 के आसपास लास्ट ईयर लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अब बढ़ गए होंगे, जिनका एंट्रेंस पिछली बार क्रैक नहीं हुआ वो कुछ तो इंक्लूड होंगे इसमें भी। एंड वो 17,000 स्टूडेंट में से 2,900 के आसपास जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हुए। मतलब एवरेज क्या 17%, 17 to 18% एवरेज होती है। उसमें से एक तो आपको इसमें अब नेगेटिव भी नहीं होना, क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए। और ज़्यादा लाइट भी मत लेना इस एग्ज़ाम को कि एग्ज़ाम आपको लाइट ले ले फिर सिलेक्शन नहीं होगा। एक मार्क्स का रोना होता है यहाँ पे। जैसे लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी की जो वो गई थी, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ आई थी वो आई थी 222 मार्क्स। 222 मार्क्स के सारे स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हुए थे। जो लास्ट कट ऑफ बता रही हूँ मैं, उसमें उनके उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स को कंसीडर किया गया था। तो आपको एक मार्क्स के साथ फाइट करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कम से कम 7 से 8 घंटे अपने स्टडीज़ को देने ही पड़ेंगे, जो बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता तो नीचे मेरी मोटिवेशनल वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि आपको किस तरीके से करना है। 7-8 घंटे बैठना ठीक है। आपको मेरे को पता है जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो उनके पास सारे PDF है, सारे नोट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बट डायरेक्शंस नहीं है। जो पर्सनली मैं भी चाहती थी जब मैं अपना एंट्रेंस दे रही थी कि मुझे अच्छी डायरेक्शंस मिले। एक रैंकर ही आपको बता सकता है कि किस तरीके से आपको आपकी रैंक आ सकती है। तो इसलिए मुझे लगा कि रैंकर्स की वीडियो बनानी चाहिए, बस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। एंड आगे की वीडियोस मेरे पास बनी हुई है, बट मैं ये टाइम टू टाइम अपडेट इसलिए करती हूँ ताकि आपको बीच में दवाई मिलती रहे, मोटिवेशन मिलती रहे। इसलिए टाइम टू टाइम मैं ये वीडियो लेके आऊँगी। एक साथ डाल दूँगी तो आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ मिलेगी तो फिर मोटिवेशन नहीं आएगी अंदर से। इसलिए मैं 4-5 दिन बाद वीडियो को डालती रहती हूँ। एंड इस वीडियो से जिन्होंने यही वीडियो सबसे पहले देखी है, जाके फर्स्ट वीडियो को देखना, वहाँ से आपको पता लगेगा कि आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है। पॉलिटी इज़ योर डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर एग्ज़ाम। पॉलिटी करने से ही आपको पता लग जाता है कि आपका एग्ज़ाम का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पॉलिटी पे तो आपको अच्छे से अपनी कमांड रखनी है। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको सजेस्ट करा था कि स्टडी IQ नहीं है तो कैचअप तो एटलीस्ट करके जाना। कैचअप का अगर आपके पास कैचअप भी नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी कैचअप के। एंड आपको और कोई भी डाउट होता है बिना किसी झिझक के आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। कुछ लोगों ने अब कुछ लोग तो कॉल करके पूछते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को भी कोई डाउट हो आप लोग बेझिझक होके मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डायरेक्शन चाहिए मैं आपको देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी। बाय। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ। तो एक बार मैच खत्म हो जाए, ये मत सोचो कि तुम हारे या